بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ مہنگائی بھتہ یعنی ڈی اے میں 2% کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی کابینہ کے اس فیصلے سے تقریباً 1.15 کروڑ ملازمین کو فائدہ پہنچے گا، جن میں 50 لاکھ موجودہ سرکاری ملازمین اور 65 لاکھ پینشنز شامل ہیں۔ ڈی اے میں اضافے کے بعد بنیادی تنخواہ پر 53% سے بڑھ کر 55% ہو جائے گا۔ اس سے قبل اکتوبر 2024 میں حکومت نے ڈی اے میں 3% کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد یہ 50% سے بڑھ کر 53% ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس میں اضافے کے ساتھ یہ مزید 55% تک پہنچ گیا ہے۔ یوگادی تہوار سے پہلے اس فیصلے پر ملازمین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پینشنز کو بھی اس تناسب سے فائدہ پہنچے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے بعد کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اس آفت کی صورتحال میں ان ممالک کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان ممالک میں زلزلے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسٹر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ میں سب کی حفاظت اور بھلائی کے لیے دعا گو ہوں۔ ہندوستان ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے حکام کو تیار رہنے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ کو میانمار اور تھائی لینڈ کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور میانمار میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی کی جانب سے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض ایک نظم پوسٹ کرنے کے معاملے میں گجرات پولیس کی طرف سے جنوری میں ان کے خلاف درج مقدمے کو منسوخ کر دیا۔ فیصلہ جسٹس ابے ایس اوکا اور جسٹس اچول بھویان کی بینچ نے سنایا۔ بینچ نے کہا کہ ریاست کے دورے کے دوران ایم پی کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی نظم ایک خون کے پیاس سے بات سنو سے متعلق کیس میں کوئی جرم نہیں بنتا ہے۔ فیصلے کے اقتباسات پڑھتے ہوئے بینچ نے کہا کہ پولیس کو ایسے معاملات میں ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے تحریری یا بولے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تقریر اور اظہار رائے کے حق پر معقول پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن شہریوں کے حقوق کو کچلنا غیر معقول اور خیالی نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے زور دیا کہ شاعری، ڈرامہ، موسیقی، طنز سمیت فن کی مختلف شکلیں انسانی زندگی کو مزید بامقصد بناتی ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں 21 جنوری کو عدالت نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرتاپ گڑھی کو راحت دی تھی اور کسی بھی قسم کی تعزیری کارروائی سے عبوری تحفظ فراہم کیا تھا۔ گجرات ہائی کورٹ نے نظم کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ پوسٹ کر کے فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمے کو منسوخ کرنے سے اس سال 17 جنوری کو انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسٹر پرتاپ گڑھی کے خلاف 3 جنوری کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گجرات کی جام نگر پولیس نے ان کے خلاف مذہب، ذات پات کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کے لیے متعصبانہ بیانات دینے، مذہبی گروہ یا ان کے عقائد کی توہین کرنے، عوام یا 10 سے زائد افراد کے گروہ کے ذریعے جرم کرنے کی رخصانے سمیت دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسان شناختی کارڈز کسانوں کا ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ اور یہ ڈیٹا کسی ایجنسی یا تنظیم کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر شیئر نہیں کیا جائے گا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے راجیہ سبھا میں ضمنی سوالات کے جواب میں کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل زراعت مشن کے تحت کسانوں کو شناختی کارڈ فراہم کر کے زراعت سے متعلق تمام عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کچی آبادیوں کی حالت زار پر کمپٹرول اینڈ آڈیٹر جنرل یعنی سی اے جی کی رپورٹ کے معاملے پر عام آدمی پارٹی پر ایکسائز پالیسی، دہلی کی صحت کی خدمات اور صحت کی خدمات سے متعلق معاملے پر سخت حملہ کیا۔ میڈیا کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے مسٹر گپتا نے کچی بستیوں میں رہنے والے غریب خاندانوں کے قابل رحم حالات کا ذکر کیا اور کہا کہ دہلی کی کچی آبادیوں میں خواتین اب بھی کھلے میں نہانے پر مجبور ہے، نہ ہی کچی بستیوں میں بیت الخلاء کی سہولت ہے، نہ ہی بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس ہے اور نہ ہی بنیادی سہولیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ
पीतमपुरा की एक कच्ची बस्ती में एक खातून बैतुल खला का इस्तेमाल करते हुए फिसल कर मर गई। राजधानी में इस तरह के वाक़यात शर्मनाक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हुकूमत की तरजीह कुछ और थी। दिल्ली हुकूमत के तालीमी मॉडल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत चंद मुंतखब स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि को बढ़ा रही है, जबकि बाकी सरकारी स्कूलों की हालत अबतर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक बच्चे की तालीम पर 60,000 रुपये और दूसरे पर 2 लाख रुपये 2,50,000 रुपये खर्च कर रही है, क्योंकि वो स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है। इस बच्चे का क्या कसूर है जिसके लिए कम बजट रखा गया है? CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वज़ीर ने कहा कि हर शोबे में घपले और बदअनवानी हो रही थी। जब भी तहकीकात होगी, बेज़ाब्तगियाँ सामने आएंगी। हर महकमे में करोड़ों रुपए घपले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूरी CAG रिपोर्ट को एक साथ पेश कर दिया जाए तो उसका वजन भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हज़ारों करोड़ों रुपए के घपले सामने आए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक सोच और मुवाफ़क़त को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया है। जनरल चौहान ने जुमे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट टेक्नोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल टेक यानी 2025 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज में टेक्नोलॉजी और जदीद कारी की ज़रूरत पर बात की और मुस्तकबिल की जंग के उभरते हुए चैलेंजों बिलखुसूस साइबर, मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और क्वांटम के शोबे में तैयारी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक सोच और मुवाफ़क़त को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ के घट्टी चौथाना जंगलाती इलाके में जुमे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदाद मिलिटेंट्स ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस दौरान तरफ़ैन के दरमियान आमना सामना होने के बाद रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी रहा। उन्होंने कहा कि इत्तलात के मुताबिक जाए तसादुम आरआई पर एक और पुलिस एहलकार की लाश देखी गई है, जिससे इस एनकाउंटर के दौरान जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 4 हो गई है। वाज़ेह है कि इस एनकाउंटर के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 3 मिलिटेंट हलाक जबकि 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे, जिनकी शनाख्त हम बुलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद के तौर पर हुई है। ज़राए ने बताया कि जुमे की सुबह रोशनी की पहली किरण के साथ ही तलाशी ऑपरेशन पार्टियों ने इलाकों में वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान तरफ़ैन के दरमियान एक बार फिर आमना सामना हुआ और रुक रुक कर फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। बताया कि वहाँ अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट मौजूद है। जुमरात की सुबह कठुआ के घट्टी चौथाना जंगलाती इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान अचानक फायरिंग का तबादला हुआ था। ज़राए ने बताया कि तरफ़ैन के दरमियान फायरिंग के तबादले के साथ ही फ़ौज, BSF और पुलिस के इजाफी दस्तों को इस जंगलाती इलाके की तरफ रवाना किया गया था, ताकि मिलिटेंटों को फ़रार होने का कोई मौका फराहम न हो सके। उनका कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने कई किलोमीटर जंगली इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। दिफाई ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाने की खातिर जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरोए कार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों, क्वाडकॉप्टरों और ड्रोन कैमरों की मदद से जंगलाती इलाके पर नज़र रखी जा रही है। जुम्मतुल वदा के मौके पर वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए और वही तराल में खानकाह फैज़ पनाह में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद ने फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की और कश्मीर के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। इस मौके पर मसाजिद और खानकाहों में रूहानी माहौल देखने को मिला, जहाँ उलमाए किराम ने खुतबात में इत्तिहाद, भाईचारे और दीनी तालीमात पर रोशनी डाली। शुक्र है कि अजीम शान दिन और अजीम शान रात हमने अच्छी तरह से हम पर गुजारी और इस वक्त जुम्मतुल विदा यानी माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा है। लोगों का इज़्दिहाम था यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नमाज अदा की। हुकूमत की तरफ से
खासकर वाक़फ़ ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल इंतज़ामात हुए थे, लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आई। हम अल्लाह ताला से दस्तबद दुआ हैं कि हमारे इलाके की खासकर और उम्मत मुस्लिमा का अमूमन अल्लाह ताला अपनी रहमत से इनको नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी इदारा गौसिया अवंतीपुरा कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें इदारे के 7 हुफ़ाज़ कुरान की दस्तारबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। मरकज़ी इदारे गौसिया के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें हमने आल जुम्मत कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया के माया नाज मुबल्लिगीन और उसके चीफ पेट्रान को मदऊ किया था। हमारे यहाँ 7 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हो गई। हम समझते हैं आज के इस समाज में हमारा जो मुसलमान बच्चा होना चाहिए वो एट ए टाइम अगर हाफिज़ कुरान भी निकले तो साथ साथ में उसको दुनियावी उलूम की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि उसको ज़रिए मुआश का वसीला बन जाए। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में जुमे को भी सुबह से ही तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रहा। आवाम की हिफाजत को मलहूज़ नज़र रखते हुए हुकाम ने लोगों और सयाहों को मशवरा दिया है कि वह हवाएं चलने के वक्त घर के अंदर ही रहें, कश्ती रानी और शकारा सवारी से गुरेज करें और कमज़ोर ढांचे या बिजली के तारों के करीब खड़े होने से इज्तनाब करें। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 28 मार्च को दूर दराज इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सती हवाएं चल सकती हैं, जो आज दोपहर या देर दोपहर तक जारी रहने की तवक्को है। उनका कहना है कि वादी में 29 मार्च से 6 अप्रैल तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलोग कॉलेज में तकरीर के दौरान कुछ तलबा के एहतजाज का सामना करना पड़ा। मोहतरमा बनर्जी यूनिवर्सिटी की दावत पर जुमरात को वहां वेस्ट बंगाल में विमेन एम्पावरमेंट और कामयाबी के मौजू पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। उसके बाद कुछ तलबा के शोर मचाने पर उन्हें अपनी तकरीर दरमियान में ही रोकनी पड़ी। ये तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और रियासत में इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद और आरजी कर कॉलेज के मामले पर अपना एहतजाज जाहिर कर रहे थे। ताहम वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सूरत हाल को निहायत खुश उसलूबी से संभाला। उन्होंने एहतजाज करने वाले तलबा को जवाब दिया और अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। वज़ीर आला ने मुज़ाहिरीन से कहा कि अपनी पार्टी से कहें कि वो हमारी रियासत मगरबी बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि हमसे मुकाबला कर सकें। इस अचानक एहतजाज से वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए और हाज़रीन ने एहतजाज करने वाले तलबा को वहाँ से निकल जाने को कहा। ताहम इस दौरान वज़ीर आला ने आरजी कर कॉलेज वाक़या इंतखाबात के बाद के तशद्दुद और बंगाल में हिंदुओं की हालत के बारे में तलबा की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उसके बाद मोहतरमा बनर्जी ने बगैर किसी रुकावट के अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली। म्यांमार में जुमे को 7.7% शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे बड़े पैमाने पर जानो माल के नुकसान की इत्तलात है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इत्तला दी है। ज़लज़ले के झटके मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:50 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान की इत्तलात हैं। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में 22.01 डिग्री शिमाली अर्जुल बलद और 95.92 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद पर था। ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस होती लोग घरों से बाहर निकल आए। कई मकामात पर ऊंची इमारतें ताश के ढेर की तरह मुनहदिम हो गई। मेघालय के मशरक़ी गारो हिल्स ज़िले में जुमे की सह पहर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर
सेस्मोलॉजी यानी NCS ने इत्तला दी है कि NCS के मुताबिक जुमे के दोपहर 1:03 पर मशरकी गारो हिल्स में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4 रिकॉर्ड की गई। NCS ने कहा कि जलजले का मरकज़ 25.57 डिग्री शिमाल अर्जुल बलद और 90.58 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद पर ज़मीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। ताहम ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और दीगर 72 अफराद पर खाना जंगी के जरिए बुरी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। यह इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। डेली स्टार की खबर के मुताबिक पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने जुमेरात को ढाके के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बगावत का मुकदमा दर्ज किया। कल CID की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि अदालत ने मामले का नोटिस देते हुए CID को तहकीकात करने की हिदायत दी है। ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने जुमेरात को अपनी अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दरामदी टैरिफ पर तनकीद की और ख़बरदार किया कि उनका मुल्क अमेरिका के खिलाफ बाहमी तिजारती इक़दाम उठा सकता है। ये रिपोर्ट ब्राज़ील के सदर के दफ्तर ने दी है। मिस्टर लुला दा सिल्वा ने जापान के अपने सरकारी दौरे के इख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तमाम ममालिक के तमाम मसनूआत पर दरामदी टैरिफ आयद करने की इस पॉलिसी के साथ अमेरिकी हुकूमत के रवैये से सख्त फ़िक्रमंद हूँ। उन्होंने गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने के ट्रंप के फैसले पर भी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ पसंद इक़दामात अमेरिकी सारिफीन के लिए गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे और इफ़रात ज़र और शरह सूद में इजाफ़े का बाइस बन सकते हैं। खबरों का आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। KCR के 10 साला दौरे इक़्तिदार में खुशहाल शहर हैदराबाद कांग्रेस की नाअहल हुक्मरानी में एक बदकिस्मत शहर बन गया। हाइड्रा और मूसा की सफाई के नाम पर शहर में मकानात की खरीदारी में कमी। BRS कारगुज़र सदर KCR का रद्द-ए-अमल। BRS ने कानून साज काउंसिल में कांग्रेस हुकूमत की कली खोल दी। वज़ीर आला के नाजिबा ज़बान तेलंगाना की तारीख में सिया धब्बा। तेलंगाना के कर्ज पर कांग्रेस का झूठ बेनकाब। BRS अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरकज़ी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों की वक्फ इमलाक को तबाह करना चाहती है। जुमातुल वदा के मौके पर मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में मुनक़िदा जलसे यौमुल कुरान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। जुमातुल वदा के मौके पर सियाह पट्टियों को बांधकर मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को वापस लेने का किया मुतालबा। रात में खाना खाकर सो जाने वाले 3 बच्चों की सुबह में मौत। मां हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। संगरूर जिले के अमीनपुर में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए सुनाई खुशखबरी। सरकारी मुलाजिमीन के DA में 2% का इजाफा करने हुकूमत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले की तबाही पर किया तशवीश का इज़हार। कहा हिंदुस्तान ज़लज़ले की तबाही की सूरत में म्यांमार और थाईलैंड को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए है तैयार। मेघालय और म्यांमार में शदीद ज़लज़ले के झटके। जानो माल का बड़े पैमाने पर नुकसान। ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस होती है, लोग घरों से बाहर निकल आए। कई मकामात पर ऊंची इमारतें मुनहदिम। फिलहाल खबरों बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.